मेरा इंजीनियरिंग जब कंप्लीट हुआ, मैंने चाहा कि मुझे एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। जब मैंने सीनियर से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा इंजीनियरिंग में एक ड्रॉप ईयर है, इसकी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा मेरा मोरल डाउन हो गया उस टाइम। अच्छा। बहुत निगेटिव माइंडसेट ऐसा डाइवर्ट हो गया था मेरा। ओके। बट एट जब मैंने सुधांशु सर का डेमो सेशन जो देखा, एट दैट टाइम सुधांशु सर मोटिवेट मी अलॉट, क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि सुधांशु सर की वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ। क्या बात है। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hey everyone, this is Pooja from Premium Learning Systems and you are watching Aspirers to Inspirers, a series on success stories of our students who were once aspiring success and today they are inspiring others to be successful. Today I'd like to start on a quote about passion. Passion is the difference between having a job and having a career. Our today's guest, he was doing this job 12 hours a day, very exhaustive, nothing exciting, nothing challenging. So he decided to switch his career to IT. However, many of his fellow teammates and seniors told him that the target, the goal seems to be very far-fetched. However, he did only three things. He asked the right advice from the right person. He believed in himself and he kept walking on the path towards his destination despite every obstacle. And the result is, he is all set, all armed up to enter into this premium IT industry in next 2 days. His name is Mitesh Khadke. So Mitesh, सबसे पहले huge congratulations on your success. और आपसे ही सुनते हैं where you have been selected, what's your designation and when did you join? Actually, ma'am, I have selected at Craftmate Services India Private Limited as a Salesforce developer. 2 May my joining date. अच्छा, सेकेंड में को आप ज्वाइन होने वाले हो. Yes. That's great. All the very best and congratulations. Yeah. तो मितेश, आपकी स्टोरी से शुरुआत करते हैं. What is your story? Actually, ma'am, I'm from mechanical background, so I was there are some big obstacles in my journey. That was a time and a non-coding background. That was a very big obstacles in that. Time for what means मेरा टाइमिंग था सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक मेरा 12 आवर्स वर्किंग था, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दैट मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मुझे कोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने मीन्स कोर्स ज्वाइन किया। बट आफ्टर सम टाइम मैंने ऐसा रियलाइज किया कि नहीं हो पा रहा है, 12 आवर वर्किंग के बाद भी नहीं पॉसिबल हो रहा है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने पूरा फोकस कोर्स पे किया एंड देन without having any offer in the hand you left your job. Yes. और आपने full time पढ़ाई करने की सोची. That was a huge risk, that was a great leap of faith. सही है मितेश। फिर आपने जॉब छोड़ दिया और आपने फुल टाइम कोर्स पे फोकस किया, करेक्ट? Yes. फिर आपकी जर्नी कैसे रही आगे? As per my friends said that premium learning system was one of the best in Salesforce developer. So I joined that. Okay, फिर आपने as per Sudhanshu sir's means motivates me a lot. बिल्कुल। तो आपने फिर प्रीमियम लर्निंग्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपकी पढ़ाई का रूटीन कैसा था? आपने कितना पढ़ा, कैसे किया? जैसे आपने कहा कि एक ऑब्स्टैकल था टाइमिंग का, जो कि आपने सारे आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बाजू में रख के आपने जॉब छोड़ दिया और आपके टाइमिंग का इशू सॉल्व कर दिया. यू हैड अ ग्रेट ऑब्स्टैकल ऑफ कोडिंग एज वेल, राइट? क्योंकि कोडिंग कभी की नहीं थी पहले, तो फिर वो वाला ऑब्स्टैकल कैसे एक्चुअली पार हुआ? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू. एक्चुअली मैम हमारा 2 टाइम
कोर्स में सेशंस रहते थे. फर्स्ट वाज EIP सेशन वाज कंडक्टेड बाय यू. दैट वाज मींस fabulous sessions was that. Thank you. And second session was at night, means 9 to 10:30. So at that time I completed that session, and after that day I I train I working on coding. अच्छा. At afternoon. दूसरे दिन में कोडिंग की प्रैक्टिस करता था पूरे दिन. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो सुबह EIP का सेशन, फिर शाम में कैप का सेशन, और फिर दिन भर पढ़ाई उसके बाद. ग्रेट ग्रेट. यस यस. तो आपका कैप के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था मितेश? दैट वाज वेरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो. यस. अच्छा. EIP सेशन तो बहुत बढ़िया थे. उसके बाद सर जो पढ़ाते थे वो तो यानी सर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाते, सुधांशु सर, इसलिए वो बहुत अच्छे से समझ में आता था सुधांशु सर का जो पढ़ाना था वो. उसके बाद भूषण सर थे, उनका जावा का कोडिंग, पहले ही कोडिंग में थोड़ा वीक था, बट एज पर भूषण सर ने पढ़ाया वो बेस्ट था. क्या बात, क्या बात. ग्रेट. तो सर की आपने डेमो सेशंस अटेंड किए थे? यस. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका डिसीजन क्यों हुआ कि प्रीमियम लर्निंग्स ज्वाइन करना? पहले ही मैम मेरा ऐसा मीन्स जब भी मैंने कुछ नया ट्राई करने का देखा था, तभी मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे ऐसा दबा के रखा था. मीन्स मैंने जब चाहा था, मीन्स मेरा इंजीनियरिंग जब कंप्लीट हुआ, मैंने चाहा कि मुझे एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए. जब मैंने सीनियर से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा इंजीनियरिंग में एक ड्रॉप ईयर है, इसकी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा. बहुत कुछ ऐसा मेरा मोरल डाउन हो गया उस टाइम. अच्छा. बहुत नेगेटिव माइंडसेट ऐसा डाइवर्ट हो गया था मेरा. बट जब मैंने सुधांशु सर का डेमो सेशन जो देखा, एट दैट टाइम सुधांशु सर मोटिवेट मी अ लॉट, क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में और प्रोफेशनल करियर में. तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना वहाँ पर. बिल्कुल बिल्कुल. सुधांशु सर की ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि सुधांशु सर की वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ. क्या बात है. तो मुझे लगता है कि नॉन IT बैकग्राउंड ये एक ऑब्स्टैकल था, कोडिंग का नॉलेज ना होना एक ऑब्स्टैकल था, टाइम नहीं था आपके पास ये एक ऑब्स्टैकल था, पर इन सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल ये था कि मे बी जो लोगों ने आपसे कहा उस वजह से आपको अपने आप पर विश्वास नहीं था, और वो विश्वास कहीं तो आई गेस सुधांशु सर के सेशन में आपका बना, एंड यू डिसाइडेड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, और फिर आपने सोचा कि आप स्विच करोगे. बिल्कुल. आपने जो उस एक विश्वास पर, उस एक कॉन्फिडेंस पे आपने जॉब क्विट किया, और फिर आपने एक पूरी नई एक जर्नी शुरू की. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर की कही हुई कोई बातें आपको याद आती है? क्या याद आता है आपको कैप के सेशन के दौरान का? सर ने एक बार बहुत अच्छा मुहावरा था या नहीं ये कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन सर ने एक बात कही थी. उन्होंने कहा था कि अगर आप एक जंगल में हो, आपके साथ और कोई है, यानी दो लोग आप जंगल में हो और आपके पीछे शेर पड़ जाए, और एट दैट टाइम आप क्या करोगे? आपके माइंड में क्या होना चाहिए? तब सर ने हमें हम लोगों को ये बताया था, आपको सिर्फ आपके जो साथ वाला है उससे तेज भागना है, शेर से तेज नहीं भागना है, खाली अपने को इतना ही करना है. ये मुझे बहुत अच्छे से याद है सर. क्या बात, क्या बात. और फिर आपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आगे जाके पढ़ा, प्रिपेयर किया, एंड यू आर ऑलरेडी देयर नाउ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड. ग्रेट ग्रेट. मितेश, EIP का आपका अनुभव कैसा था? EIP का बहुत बढ़िया अनुभव था. क्या 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 करते थे आप EIP के दौरान? कैसे चेंज आया? क्या मतलब how did the time go during EIP? एक्चुअली मैम मुझे ना अपना जो इंटरव्यू देने का बहुत फियर था. अच्छा. मैं बहुत डरता था इंटरव्यू देने के लिए. वो सामने हो या मीन्स इंटरव्यूअर सामने हो या जूम पे हो, कहीं पे भी हो, बहुत डरता था मैं वो उसके लिए. मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश का भी बहुत वीक था. बट
जब मैंने EIP सेशन स्टार्ट किए तब आप ही थी EIP सेशन के लिए। वहाँ पे आपने डायरेक्टली वीडियो ऑन करके मुझे बोलने के लिए कहा, सभी लोगों को वैसा कहा। उसके लिए थोड़ा ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ वहाँ पे। उसकी वजह से थोड़ा इंग्लिश अच्छे गलत भी हुआ, लेकिन बोलने का ट्राई शुरू किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। And you are a completely different person at the end of EIP session, from a very shy to a confident person. So even I have witnessed that journey, Mitesh. It was great to see you changing. तो मितेश, आपने कैप के सेशंस में आपने पूरा डेडिकेट होके पढ़ाई की, कोडिंग समझा, EIP के सेशंस अटेंड किए, अपने आप को ग्रूम किया इंटरव्यूज के लिए, कॉन्फिडेंस बनाया अपने आप का। और फिर ये सब होने के बाद जब आपने इंटरव्यूज फेस किए तो वो टाइम कैसा था? पहले 2-3 इंटरव्यू में मैं तो पास ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लैक ऑफ नॉलेज वीक था मेरा बहुत। इसकी वजह से जब मैं वहाँ पे फेल हुआ तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है। इसलिए मैंने खुद से एक मंथ निकाला, पूरा 1 महीना खुद को प्रिपेयर किया इंटरव्यू सेशंस के लिए, और बाद में मैंने इंटरव्यूज दिए। सेल्फ रियलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद जो अपना प्रिपरेशन होता है वो फोकस्ड होता है। हमें पता होता है कि हमारा वीकनेस क्या है और हम उसे पकड़ के फोकस्ड काम करते हैं, तो इट बिकम्स अ फोकस्ड एक्टिविटी। ग्रेट। सो मुझे लगता है कि वो जो पहले 1-2 एक्सपीरियंसेस थे आपके इंटरव्यूज के, वो थोड़े सेल्फ रियलाइजिंग काइंड ऑफ थे। फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर कराया एंड देन यू गॉट सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट इंटरव्यू, आई बिलीव, राइट? यस। ग्रेट ग्रेट। सो मितेश, मतलब आपकी जर्नी तो हमें थोड़ी ब्रीफ में समझी है अभी, पर मैकेनिकल में जहाँ पे आप 12-12 घंटे काम करते थे और जॉब सेटिस्फैक्शन फिर भी नहीं था, राइट? फ्रॉम देयर to being selected into IT, which is considered to be a premium IT field, तो ये जो चेंज अभी लाइफ में आया है तो कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है अभी तो, क्योंकि वहाँ पे मैम कैसा है, मैकेनिकल फील्ड बुरी नहीं है, बहुत अच्छी फील्ड है वो भी, बट एक ही टास्क हम डेली रिपीट करते थे। वहाँ पे कुछ ऐसा सीखने के लिए कुछ नहीं था, डेली एक ही टास्क हम रिपीट करते थे। मीन्स कुछ ऐसा था ही नहीं कि अगले दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे तो मीन्स मेरे टैलेंट का वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैंने करियर स्विच करने के बारे में सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट डजंट चेंज यू। आपके जॉब में आपको कुछ चैलेंजिंग एज सच नहीं मिल रहा था, आपके आपका टैलेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा था, and that is where you started finding your passion and you found it to be information technology, right? Great Mitesh. तो अब जब जो सबसे बड़ा डर था आपका कोडिंग, है ना, जॉब क्विट करना इज नॉट एन इजी थिंग, तो ये सब पार करके जब अभी आप यहाँ पे पहुंचे हो फाइनली, तो अपने आप में क्या चेंजेस आए हैं मितेश? अभी तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लगता है, क्योंकि कोई भी अगर पूछे तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे ये आता है, नहीं आता है, जो है वो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, मैं बोलता बहुत कम था, कुछ यानी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था कोई चीजों को। अभी वैसा नहीं है, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है तो मैं उनको बता सकता हूँ मुझे सर में अभी नहीं आता है, बट आई कैन स्टडी ऑन दैट। उसके बाद मैं खुद को प्रिपेयर कर लूंगा उसके बाद। बिल्कुल सही है। सो यू हैव बिकम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट पर्सन आफ्टर गोइंग थ्रू दिस जर्नी एंड गेटिंग द सक्सेस ऑल्सो, बिकॉज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस चाहिए, छोटा क्यों ना हो, सक्सेस मिलता है तो विश्वास बढ़ता है। यस, सो दैट्स ग्रेट। तो मितेश, वी फील वेरी प्राउड, क्योंकि इतने स्ट्रगल से आप आगे जाकर आपने सक्सेस पाया है। तो we would like to know कि we are glad that we could be part of your journey. तो आप जब अभी पीछे मुड़ के देखते हो, प्रीमियम या करियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम या EIP प्रोग्राम को देखते हो, तो आपको सबसे अच्छी चीज प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स के बारे में क्या लगी? एक चीज। वैसे एक चीज तो नहीं है मैम, बहुत सारी चीजें जो अच्छी लगी।
क्या बात है। एज पर मुझे सबसे अच्छा प्रीमियम लर्निंग सिस्टम में सुधांशु सर सबसे बेस्ट। व्हाट अबाउट सुधांशु सर? उनका मीन्स पढ़ाने का टेक्निक बहुत अच्छा है। जैसे कि वो इतना बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाते हैं ना, वो एग्जाम्पल भी इतना बेसिक देते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाता है, यानी ऐसा सिर के ऊपर से नहीं जाता कुछ, एकदम बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। और उनका डांटना भी बहुत अच्छा है। मैंने एक बार उनकी डांट खाई थी। क्या बात? कोई तो रीजन था इसके लिए अच्छा। मैंने डांट खाई थी, बट उसके बाद मैंने कभी उनसे डांट खाई नहीं है किसी भी बारे में। पर वो जो एक बार डांट खाई वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि प्रीमियम लर्निंग के इतिहास में अब ये काइंड ऑफ थोड़ा रूटीन बन गया है कि जो डांट खाता है वो थ्राइव करता है आगे जाके। सो ग्रेट 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 मितेश। उसके बाद EIP सेशन भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी आप जल्दी ही IT में एंटर करोगे, आप आपकी नई आइडेंटिटी, आपका नया करियर बना रहे हो। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब कभी अगर सर से फेस टू फेस मिलते हो एक्सीडेंटली डिसाइड करके, तो क्या कहोगे सर से? क्या सोचा है? सबसे पहले तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरा लाइफ का यानी करियर पाथ ही चेंज हो गया। उनकी वजह से ही मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत निगेटिव माइंडसेट की ओर में चला गया था। बट सर का वो फर्स्ट वीक का जो सेशन था, मुझे अभी भी याद है, सर ने सेकंड सेशन में बोला था कि तुम ऐसा सोचो ही मत किया, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा करियर गैप है, उसके बाद तुम मैकेनिकल फील्ड से हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसा तुम कभी मत सोचो, तुम कर सकते हो, बस ध्यान में रखो, नेवर गिव अप। तो वो डोज मिला और उससे जो सारे यस उससे पूरे तैयार हो गए आप। ग्रेट ग्रेट। मितेश, आपकी जो स्टोरी है वो स्ट्रगल या फिर इंफीरियोरिटी, इन सब को पार करके आगे जाने वाली सक्सेस स्टोरी है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग अप टू यू एज एन एग्जाम्पल। तो आप उनसे क्या कहोगे कि जो अपने करियर गैप या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड या फिर और भी ऐसे कोई अदर ऑब्स्टैकल्स की वजह से ये दे आर टेकिंग बैक सीट्स, वो अभी भी बैठे हैं, वो ये स्टेप लेने की हिम्मत नहीं कर रहे कि हम भी IT में जा सकते हैं, तो आपका उनके लिए मैसेज क्या रहेगा? बस यही मैसेज है उनके लिए कि गलत लोगों से कभी सलाह मत लो, वो आपको निगेटिव की ओर ज्यादा धकेलेंगे निगेटिव की ओर। कभी भी सही लोगों से सलाह लो जो यानी कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल सुधांशु सर, वो अगर उनसे मैंने पहले ही सलाह ली होती इंजीनियरिंग होने के बाद, तो आज मैं कहीं और होता, इससे बेटर जगह पे होता। और ये यानी कि ये सक्सेस स्टोरी में 2 साल पहले दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, गलत लोगों से सलाह मत लो। और दूसरा ये कि अगर सलाह ली भी है तो उसे जांचो, पढ़ता लो उसे, क्योंकि जब तक हम उसे जांचेंगे नहीं तब तक हमको रियलाइज नहीं होगा वो सच है या झूठ है। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था तुम MNC के क्राइटेरिया में कभी बैठोगे ही नहीं। अभी मैं MNC कंपनी में जॉब को लग गया हूँ। तो बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब मितेश, thank you very much. So that is all from my side, Mitesh. Your story is fabulous. It is a great example of struggle to success, and if you have shown so much of dedication and power in your first story, so your story is going to be evolving all your life. आप बहुत 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 बड़े मकाम पे पहुंचोगे और मिलते रहेंगे। बिल्कुल। We wish you all the very best for joining the company and for your future endeavors also. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am.